Hello guys, welcome back again to the online classes, and in this lecture or lesson we are going to talk about the theorem number 12.7. This is the last theorem which is related with the introduction of the exercise 12.2. Sixth theorem we have discussed in the last 2 or 3 videos. Now I'm starting theorem number 12.7. Basically this is the converse or vice versa of the theorem number 12.6. So what is the statement of this theorem? The theorem number 12.6 was, if two chords are equal, then they will form equal angle at the center. About this theorem we discussed. Now we are going to talk about the converse of it. It means angles are equal, then chord will be equal. So in a circle, angle formed by two chords at the center of a circle are equal, then chords will also equal. Angle formed by two chords at the center of a circle are equal, then chords will also equal to each other. देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है. एक सर्कल हमें दे रखा है, टू chords are given, ये इक्वल लग नहीं रही हैं. Let's suppose AB and CD. These two chords are given. These are constructing two equal angles at the center. Clear? अब हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that both the chords will also equals to each other. How will we do? Let's proceed. First of all, write what is the given things. In the given circle, angle AOB is equals to angle COD. This thing is given. What we have to prove? To prove, हमें प्रूव करना है chords are equal. It means AB is equals to CD. ये हमें क्लियर करना है. कंस्ट्रक्शन इसमें कंपल्सरी नहीं है. डायरेक्ट आते हैं प्रूफ पे, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल ऑलरेडी बिल्डअप हो रखे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द ट्रायंगल AOB एंड देन COD. फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. लुक हियर, AO is equals to CO because radii of a circle. Clear? Similarly, BO is equals to DO. This is the also same concept. समझ में आ रहा होगा. देखो, AO is equals to CO and BO is equals to DO because both are radii of a circle. Last thing, angle AOB. Angle AOB is equals to angle COD because it is given. ये हमें ऑलरेडी दे रखा है. एंगल AOB is equals to angle COD. So this side angle and side, these are correspondingly equal to the this side angle and this side. So right side angle side criteria of congruency, SAS. Triangle AOB is congruent to triangle COD. ठीक है. AO CO बाद में बचा क्या है? B इधर, तो इधर D आ गया. यूजिंग CPCT हम AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा. यहाँ से AB इज इक्वल्स टू CD, और जो कि हमें
प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये अपनी थ्योरम रही 12.7। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो आप इसको कॉपी कर लेना। देखो 12.2 में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ज़्यादा है और फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो ट्रू फॉल्स पे बेसिस है, तो इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप खुद से ट्राई करना सोल्व करने की। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल टू सोल्व देन इन्फॉर्म मी, आई विल हेल्प यू। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज if the radius of a circle is 13 centimeter, circle is given. Question number 2 and the radius of the circle is 12 centimeter. 12 centimeter और 13 centimeter, सॉरी ओ मान लेता हूँ, ये ए मान लेता हूँ, 13 centimeter. After it, one chord is 10 centimeter. एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने ये कॉर्ड मान लो कि रेडियस और कॉर्ड का जॉइनिंग पॉइंट सेम लिया है एंड दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड OP। तो एक बार मैं क्वेश्चंस को फिर प्रोनाउंस करता हूँ। ए सर्कल इज गिवन एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज फाउंड टू बी 13 सेंटीमीटर एंड ए कॉर्ड, लेट सपोज AB इज ए कॉर्ड हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। देखो अपन ने बिगनिंग की जो थ्योरम्स डिस्कस की थी उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था कि इफ यू विल ड्रॉ डिस्टेंस है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी, सो OP विल बी द परपेंडिकुलर BA। तो परपेंडिकुलर हम सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो BA 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो BP इज इक्वल टू PA होगा। अब BA की लेंथ 10 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली PA की लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। तो देखो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हियर OA रेडियस OA is equals to 13 सेंटीमीटर। कॉर्ड जो कि AB है अपनी विच इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और हमें क्या फाइंड आउट करना है? OP का कैलकुलेट करना है। ये चीज़ें तो हमें दे रखी है। अब क्वेश्चन में पहले तो अपन PA की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री का ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली, ये 90 डिग्री एंगल, ये अपना 5 हो जाएगा, ये 13। तो अपन यहाँ पे बोधायन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपन पाइथागोरस थ्योरम, जो भी आप बोलना चाहो। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने डिस्कस कर रखा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, है ना। और बोधायन थ्योरम भी है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो मैं पहले ये AP कैलकुलेट करता हूँ। AP इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ AB। इसके लिए मैंने एक थ्योरम यूज लिए। क्लियर? अब देखो AP क्या आ गया? AP इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? AP की लेंथ 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल OPA एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। Angle P is equals to 90 degree because the distance of a point from a line is always found to be perpendicular. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर मैं बोधायन थ्योरम यूज कर रहा हूँ। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर पहले साइड ले लेता हूँ, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। बोधायन थ्योरम। क्लियर? OP स्क्वायर प्लस PA इज 5 सेंटीमीटर तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। ये 13 स्क्वायर तो 169, पे 13 का स्क्वायर होगा 169, देन OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144 और फ्रॉम हियर OP इज इक्वल्स टू √144 प्लस माइनस 12 आएगी। तो
माइनस कभी कोई लेंथ पॉसिबल नहीं हो सकती, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, और ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया अपन ने। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, two chords AB and CD of a circle whose length are 6 cm 12 cm respectively। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, two chords, a circle is given, question number 3, in which two chords are given whose length are 6 cm and 12 cm। क्लियर है? बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे लाई इन सेम साइड ऑफ ए सेंटर। मतलब दो केस बन सकते हैं, मान लो कि एक ये मान लो 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, एक तो एक ही साइड में, या फिर 6 सेंटीमीटर वाली इधर और 12 सेंटीमीटर वाली सेंटर के इधर भी पॉसिबल हो सकती है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, कैलकुलेशन का थोड़ा सा रहता है। अब एक है ए बी की जो लेंथ है वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और बी सी डी की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। सर्कल थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। विजिबिलिटी होगी शायद इसकी। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। दिस इज द सेंटर ए बी एंड सी डी। दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके बीच की मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर इनके बीच की डिस्टेंस ली है तो मैं सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे अपन इसकी। ये सेंटर मान लेता हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने Q, ये पॉइंट ले लिया Q, P और ये Q हो गया। और इसके बीच द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज फाउंड टू बी 3 सेंटीमीटर। अब देखो पहला पॉइंट ये आता है कि हाउ आई नो दैट द 12 सेंटीमीटर दिस कोड सी डी विल बी क्लोजर टू द सेंटर। हमें ये कैसे पता चला कि ये सी डी ही सेंटर के क्लोजर होगी, ये ए बी क्यों नहीं गई इधर? तो इसका फंडामेंटल ये होता है कि सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो होती है डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज डायमीटर। और सबसे बड़ी कोड होती है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है? सेंटर इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस नील 0। तो जब 0 डिस्टेंस पे कोई अपन कोड लेते हैं तो उस कोड की लेंथ क्या होगी? लार्जेस्ट। दिस इज द लार्जेस्ट कोड अमंग ऑल द कोड्स विच एग्जिस्ट इन ए सर्कल। तो आपका डायमीटर सबसे बड़ी कोड हुई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे से कोड की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, सेंटर से कोड की डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, तो कोड की लेंथ है ना वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मीनिंग ये निकला, साइंस की लैंग्वेज में आप समझते होंगे, डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम सेंटर is inverse proportional to the किसके? लेंथ ऑफ कॉर्ड। मीन्स डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कॉर्ड की लेंथ कम होगी, और यदि कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगी बेसिकली। तो यहां पर कौन सी कॉर्ड की लेंथ ज्यादा है? तो सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, तो सी डी सेंटर के क्लोजर होगी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। तो मैं इसको ज्वाइन करवा लेता हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ। देखो एक इसको भी ज्वाइन करवा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। ठीक है, और ये लेंथ हमें 3 दे रखी है। मैं देखो एक तो ये ट्रायंगल यूज लूँगा, इस ट्रायंगल में ये लेंथ नहीं है तो मैं ये मान लेता हूँ, ये पी पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और ये अक्स कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। शो हो रहा होगा इजीली डायग्राम में। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, पहले तो सभी वो चीज़ें मेंशन करनी है जो इसमें दे रखी हैं। टू कोड्स ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, या फिर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, और रेडियस को आर कंसिडर कर रहा हूँ भाई मैं, ये भी आर होगी तो ये भी है, तो रेडियस ही दोनों सेम होंगी। फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? ओ बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू का देखो अक्स प्लस 3, ये 3 है और ये अक्स है, ये अक्स है और ये 3 है, तो अक्स प्लस 3 और 3 प्लस अक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू बी, ये टोटल 6 है, तो ये इसका परपेंडिकुलर ड्रू किया है मैंने, तो ये क्या हो जाएगी 3 हाफ। देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स प्लस 9। देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स प्लस 18। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Got it? Again, from triangle, second triangle I am selecting OPD. Again OD square is equals to, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, OD square is equals to OP square प्लस PD square। देखो अब क्या मिलेगा, ओ डी स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ओ पी कितना आया अक्स स्क्वायर प्लस देखो ओ पी की लेंथ अक्स है और पी डी टोटल 12 है, तो हाफ कितनी 6। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर प्लस 36। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड म्यूचुअली रिलेट कर दो। आर स्क्वायर एल एच एस पार्ट आर इक्वल, देन आर एच एस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल है। देन अक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स प्लस 18। अक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 18 को इधर ले आओ। पहले तो मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, 6 अक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 36 और 6 अक्स इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36 माइनस कितना आया 18। देन 6x इज इक्वल्स टू कितना बचा 18, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 36, 9 प्लस 36 45। देन आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 45 और इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 रूट 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपनी क्या आ गई लेंथ ऑफ द रेडियस। एक बार फिर से चेक करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 18, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आके माइनस हुआ, 18 बचा, एक्स की वैल्यू आ गई 3 और एक्स की वैल्यू अपन ने यहाँ रखी 9 36 45 आई, हाँ ठीक है, तो 45 का अंडर रूट किया जो कि मैंने 9 इंटू 5 3 रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई आपकी लेंथ ऑफ द रेडियस हुई। सो इट्स इनफ फॉर द टुडेज क्लास। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो यू अंडरस्टूड। एंजॉय ऑनलाइन क्लासेज।